لیکن خرگوش میلا نہیں ہوتا, وہ صاف ستھرا ہی ہے. تو جانور کی نہ صفائی ہے نہ گندگی ہے بھائی. جیسا قدرت نے بنا دیا, جس سانچے میں اللہ نے اس کو ڈھال دیا, وہ قیامت تک اسی سانچے میں رہے گا. انسانوں میں آپ کو میلے بھی ملیں گے, صاف ستھرے بھی ملیں گے. ایسے ایسے میلے ملیں گے کہ جس صابن سے وہ نہاتے ہیں اس صابن کو صرف سے دھونا پڑتا ہے بعد میں جا کے. ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ اگر وہ اوپر والے پورشن میں نہا رہا ہوگا, نیچے والی آپا بولیں گی بہن کیا صحن دھو رہی ہو, کیا اتنا کیچڑ. میں نے جانتا ہوں ایسے لوگوں کو, اتنے میلے بدبو آتی ہے. لیکن آپ کو ایسے صاف ستھرے بھی ملیں گے, نیٹ کلین. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو اتنی زیادہ صفائی تھی نا ان کی طبیعت میں, ہم حیران ہو گئے جا کے نا. ان کے پاؤں کا جو تلوا تھا نا, نیچے کا حصہ, اس پہ کبھی میل کچیل نہیں دیکھا ہم نے. ان کو صفائی کا ایسا کچھ تھا, اتنی زیادہ صفائی. تو صاف ستھرا انسان اچھا لگتا ہے, میلا انسان برا لگتا ہے. اخلاقی طور پر صفائی اچھی چیز ہے, گندا رہنا بولو بری چیز ہے. سچ اچھی چیز ہے, جھوٹا ہونا بری چیز ہے. وفاداری اچھی چیز ہے, بے وفائی بری چیز ہے. چور ہونا برا ہے, ایماندار ہونا, چور پہ آپ کو پتہ نہیں کیوں ہنسی آئی ہے ایک دم سے. چور ہونا برا ہے, ایماندار ہونا اچھا ہے. یہ ساری صفتیں انسانوں میں پائی جاتی ہیں, آپشنل ہیں. اپنی مرضی سے ایماندار بھی بنتا ہے, اپنی مرضی سے بے ایمان بھی بنتا ہے, اپنی مرضی سے شکر گزار بھی بنتا ہے, اپنی مرضی سے ناشکرا بھی بنتا ہے, اپنی مرضی سے بہادر بھی بنتا ہے, اپنی مرضی سے بزدل بھی بنتا ہے, اپنی مرضی سے سخی بھی بنتا ہے, اپنی مرضی سے کنجوس بھی بنتا ہے. جانوروں میں جو کنجوس ہیں, کنجوس کے کنجوس ہی رہیں گے, وہ جو سخی ہیں وہ سخی کے سخی رہیں گے. اس لیے جانور کی کوئی اخلاقی زندگی بولو نہیں. تبھی جانوروں میں میرا کبھی بیان ہی نہیں ہوا کہ میں کتوں کو سمجھا رہا ہوں کہ یار, یا میں طوطوں کو سمجھا رہا ہوں کہ بے وفائی مت کیا کرو. طوطا چشمی مشہور ہے نا, طوطے کو آپ ساری زندگی پالو, جس دن پنجرے کا دروازہ کھلا ہو گیا مارکیٹ سے شارٹ. کتے کو وفا سکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کتے کو تو بھگانا مشکل ہو جاتا ہے. وہ کہے گا نہیں بھائی تو نے مجھے 2 نوالے کھلا دی, اب میں تیرا غلام ہوں. اللہ نے پیغمبر انسانوں میں بھیجے ہیں, جانوروں میں نہیں بھیجے. تو اب خوب اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہیں, اخلاقی اور مادی. مادی زندگی میں بھی اس کو نیچر پہ چلنا ضروری, اخلاقی زندگی کے لیے بھی اس کو نیچر پہ چلنا ضروری. کینیڈا آ کے آپ کو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں مادی زندگی میں نیچر کو فالو کرنا ہے. یہ بات آپ کی کھوپڑی سے نکل گئی کہ بھائی ایک انسان کی روحانی زندگی بھی ہے, اس میں بھی ہمیں کس کو فالو کرنا ہے, نیچر کو فالو کرنا ہے. اور روحانی زندگی میں نیچر, جسمانی زندگی میں نیچر کو فالو ڈاکٹر کرائے گا, روحانی زندگی میں نیچر کو فالو پیغمبر کرائیں گے. وہ ڈاکٹر کا کام نہیں ہے. نہیں آ رہی بھائی, پولیس بلاؤ. آپ سمجھتے ہو کہ سب کچھ کینیڈا ہی ہے, سب کچھ سائنسدان ہی ہے. بھائی سائنسدان, ریسرچر مادی زندگی کے محقق ہیں. وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نیچر کو فالو کرو گے. نیچر کو فالو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پہلے زمانے میں انسان چلتا تھا, دوڑتا تھا, بھاگتا تھا, محنت کرتا تھا. اب انسان گاڑیوں میں آ گیا, سارا ٹائم کمپیوٹر پہ بیٹھا رہتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں یہ نیچرل نہیں ہے, صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے دوڑنا پڑے گا. گاڑی ٹانگوں کا آلٹرنیٹ بولو نہیں ہے. لوگوں نے جوس بنا کے پھلوں کے پینا شروع کر دیے, جوسر مشینیں آ گئی ہیں. ڈاکٹروں نے بتایا بھائی یہ نیچرل نہیں ہے, قدرت نے کینو, مالٹا, سیب پیدا کیے جوس نکالنے کے لیے, چبا کے کھانے کے لیے. تو یہ جو گرائنڈر مشینیں ہیں یہ دانتوں کا آلٹرنیٹ. جلدی پلیز منہ سے یعنی ارشاد فرمائیے, میں پھوٹیے بولنے والا تھا لیکن مناسب نہیں ہے. یہ گرائنڈر مشینیں یہ دانتوں کا آلٹرنیٹ. سائنس کتنی ہی ترقی کر جائے, نیچر کے اصول کبھی بھی چینج نہیں ہوتے. اب بتاؤ کوئی انسان کا یار ہم 1000 سال پہلے بھی روٹی کو دانتوں سے چبا کے کھایا کرتے تھے اور گوشت کو ایسے یوں کر کے چبایا کرتے تھے. ابے بھائی پہاڑوں پتھروں کا دور تھا, اب سائنس ترقی کر چکی ہے, اب روٹی چبا کے نہیں کھائیں گے. گرائنڈر مشینیں دانتوں کا آلٹرنیٹ ہیں, مشین میں ڈالو, چبا کے پاؤڈر بنا کے دے دے گی اور پھانک لو, ٹائم بھی بچے گا.
डॉक्टर क्या कहेगा ना, चबाने का प्रोसेस उसी तरह है जैसे 10,000 साल पहले था। आपने कहा बे पुराने दौर की बातें करते हो यार डॉक्टर साहब, पहले जमाने में टांगों पे चल के हम जाया करते थे। टांगों से मुराद वो घोड़े वाले टांगे नहीं, ये वाली टांगे, इस पे चल के जाया करते थे, वजन उठाते थे। अब मशीनें आ गई हैं, क्रेनें आ गई हैं, अब गाड़ियां आ गई हैं, अब पैदल चलना, वही पुरानी बातें कर रहे हैं डॉक्टर लोग। उलमा पे ये इतराज करते हैं यार ये हमें 1400 साल पहले धकेल रहे हैं यार, अब साइंस एडवांस हो गई है। भाई एडवांस हो गई है तो चलना फिरना छोड़ दो ना, वॉकिंग और जॉगिंग छोड़ दो आप। गाड़ियां आ गई ना, टांगों का अल्टरनेट, बाइकें आ गई है ना, लेकिन मौतें क्यों वाकई हो रही हैं? बाइकों और गाड़ियों की वजह से ही तो हो रही हैं। बाइक और गाड़ी की वजह से लोगों ने पैदल चलना छोड़ दिया। डॉक्टर क्या कहेगा? भाई साइंस कितनी ही तरक्की कर ले, गाड़ियां के बजाय जहाज आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको पैदल चलना है। आपने कहा डॉक्टर साहब आप कहते हो फलों का जूस नहीं पियो, कीनू माल्टे ऐसे खाया करो, सेब चबा चबा के खाया करो। डॉक्टर साहब आप चबा चबा के बातें करते हो, आप हमें 1400 साल पहली जिंदगी की तरफ धकेल रहे हो। अब मशीनों का दौर है, कौन घंटा सेब को यूं करके चबाए, मेहनत करे। जूम किया ग्राइंडर, वो ग्राइंडर मशीन पे एक लतीफा मुझे हमेशा याद आता है। एक खातून जब मैके जाती थी ना तो उनके मियाँ पतली गली से घर से निकल जाते थे, आवारागर्दी करते थे, ऊट पटांग हरकतें गैर अखलाकी। तो वो औरत जब भी घर जाती ना, वो पहले बता के जाती अपनी मैके, देखो आप रात को जल्दी घर आओगे और टाइम पे घर आ जाना। तो वो मैके जाके फ़ोन करती हैं अपने शोहर को, आप घर पर हैं, रात के 2 बज रहे हैं। हाँ बेगम मैं घर पे हूँ, शरीफ आदमी हूँ मैं। तो अच्छा ग्राइंडर मशीन चला के दिखाओ ज़रा। वो ग्राइंडर मशीन चलाता, जूं आवाज़ आती, समझ जाती भाई घर पे ही है। कई दफ़ा ऐसे हुआ, अचानक एक दिन वो घर पे आ गई, देखा मियाँ साहब घर पे नहीं। बेटे से पूछा बेटा अब्बू कहाँ है? कह रहे अम्मी वो ग्राइंडर मशीन लेके निकले हुए कहीं। अम्मी वो ग्राइंडर मशीन लेके निकले। खैर, तो अब मुझे बताओ भाई फलों का जूस तो जूस की तरह वो नहीं, वो अल्टरनेट नहीं, शुगर स्पाइक करेगी, एकदम बढ़ेगी शुगर आपकी। डॉक्टर कहते हैं भाई बातें सिर्फ चबा चबा के मत किया करो, खाना भी चबा चबा के ही खाया करो। अब आपका वो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली। भाई साइंस जितनी तरक्की करे फितरत का अल्टरनेट नहीं है, बल्कि साइंस की तरक्की ही से पता चलेगा कि नेचुरल लाइफ ही जरूरी है। तभी तो पिज़्ज़े बर्गर आने के बाद सेहतों का बेड़ा गर्क। कभी देखा कोई जान बनाने के लिए डॉक्टर कहा कि पिज़्ज़े खाया कर तू दबा के? पुराने जमाने की तरह रोटी वो घंटा बैठ के चबाना नहीं, पिज़्ज़े खाया कर नहीं भाई। पहले सेहतें अच्छी क्यों होती थी? इसी वजह से नेचुरल लाइफ थी। तो मुझे एक बात बताओ, ये कैसे मुमकिन है कि मादी जिंदगी में साइंस कितनी ही तरक्की कर ले, फिर भी हमें अपनी जिस्मानी जिंदगी को मेंटेन रखने के लिए नेचुरल लाइफ की जरूरत है? तो क्या यह मुमकिन है कि आप कनाडा में आ गए, रूहानी जिंदगी को मेंटेन रखने के लिए आपको नेचुरल लाइफ की जरूरत नहीं रही हो? नहीं यानी मेरा ख्याल है बात। भाई रूहानी जिंदगी के, रूहानी का मतलब जो अखलाकियात है ना, अखलाकी जिंदगी इंसान की, अखलाकी जो पहलू है उसको सही रखने के लिए भी क्या चाहिए? फितरत, नेचर। और कुरान का ये दावा है कि इस्लाम के अलावा आपकी रूहानी जिंदगी को नेचर पे लाने के लिए किसी के पास पैकेज है ही नहीं है। अगर आप इस्लाम से बगावत करते हो तो नेचर से बगावत करते हो। ये इस्लाम का दावा है, कुरान का दावा है, और दावा बराए दावा नहीं है। कुरान और सुन्नत के पास इस पर ऐसे खानदानी दलाइल हैं। कुरान कहता है फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा। देखो कुरान मेडिकल साइंस की किताब नहीं है, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की किताब नहीं है। कुरान का टॉपिक है अखलाकियात, आपकी रूहानी जिंदगी को बेहतर करना, उसमें हिदायत देना, आपको गाइड करना। कुरान कहता है हुदल लिल मुत्तकीन, ये गाइडेंस है। तो क्या मतलब मेडिकल साइंस की गाइडेंस है? अगर कुरान मेडिकल साइंस की गाइडेंस होती तो जो कुरान पढ़ने वाले सबसे बड़े डॉक्टर होते वो। क्या ख्याल है भाई? मैं सबसे बड़ा डॉक्टर होता इस वक्त, और मैं आपको बता रहा होता गुर्दों में पथरी कैसे निकलती है और ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल होता है। नहीं भाई, ये उलमा का टॉपिक बोलो नहीं है। तो कुरान गाइडेंस है, हिदायत है। क्या मतलब है इसका? भाई इंसानी जिंदगी के 2 पहलू हैं, एक मादी जो कनाडा में आके ठीक होगा, आपका हो गया, क्योंकि यहां मक्खी और मच्छर मिस कर रहे हैं आप लोग, बैक्टीरिया मिस कर रहे हैं आप लोग, बीमार करने वाली चीजें मार्केट से क्या चल रही हैं? शॉर्ट।
समझ रहे हो ना, गुर्बत नहीं है, महंगाई नहीं, जो भी है महंगाई तो है लेकिन उसके हिसाब से फिर तनख्वाह भी आपकी डॉलर में है, तो उस हिसाब से बहुत बेहतरीन सड़कें वड़कें खूबसूरत, इतने खूबसूरत घर, और घरों में फासला भी है, ऐसा नहीं है कि इधर दरख्त लगा हुआ वो फल उस घर में जा रहे हो उसके, सही है ना। हमारे खिड़की खोलो दूसरा घर शुरू हो जाता है वहां से, अजीब हिसाब किताब है, कोई खुले डुल्ले घर नहीं है। गुलिस्तान जौहर की हालत देखो आप। एक साहब मेरे पास आए, मेरा छोटा सा फ्लैट है, आप कहते हो बच्चे स्पीड से पैदा करो, तो ये घर, एक कमरे में मैं इतने बच्चों को कैसे संभालूंगा। मैंने कहा मैंने कब कहा है कि गुलिस्तान जौहर के उस फ्लैट में ही रह के स्पीड से बच्चे पैदा करो। अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, थोड़ा उधर चले जाओ भाई, थोड़ा एहसानाबाद की तरफ, गुलशन मेमार की तरफ निकल जाओ, आपको जितने का फ्लैट इतना सा गुलिस्तान जौहर में मिल रहा है, थोड़ा आबादी से बाहर जाओगे तो बड़ी जगह मिल जाएगी। तो ये वही बात है कि जिस दिन मेरा बयान 4 शादियों पे हुआ था वो सुना था, जिस दिन अदल पे बयान हुआ था उस दिन आप छुट्टी पर थे, तो फिर गड़बड़ होगी कि नहीं होगी। गवर्नमेंट के काम ऐसे ही होते हैं ना हमारे यहाँ। देखो गवर्नमेंट में एक आदमी जो था ना, वो इंटरव्यू लेने के लिए गया, देखा कि वो कवरेज के लिए गया, तो देखा कि एक सांप गड्ढा खोद रहे हैं, दूसरा उसमें मिट्टी डाल के भर रहे हैं। उसने कहा ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा भाई ये गवर्नमेंट ने एक दरख्त लगाने का पैकेज दिया है, 3 आदमियों के जिम्मे काम लगाया है, एक का काम है गड्ढा खोदना, दूसरे का काम है पौधा फिट करना, तीसरे का काम है मिट्टी भरना। तो दूसरा छुट्टी पे गया हुआ है, हम दोनों अपनी जिम्मेदारी। तो गवर्नमेंट के काम ऐसे होते हैं, क्या कह ले भाई, मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, ये मिट्टी डाल रहे, वो हमारी क्या, अब हमारी थोड़ी कसूर है कि वो छुट्टी पे गया हुआ है। खैर, तो मैं ये कर रहा था मेरे भाई कि फितरत का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। कुरान का ये दावा है कि रूहानी जिंदगी, अखलाकियात, तहजीब, ये मुख्तलिफ नाम है, मुख्तलिफ नामों से हम इसको ताबीर कर, मैनर्स, समझ रहे हो ना, ये मुख्तलिफ नाम है, अखलाकियात, तहजीब, मैनर्स और रूहानियात, ये एक ही चीज के मुख्तलिफ ताबीरात हैं। कुरान का ये दावा है कि ये वाली गाइडेंस, यानी हम इंसान को इंसान का बच्चा बनाने वाली गाइडेंस, देखो इंसान का बच्चा, ये मैं आसानी से एक लफ्ज समझा रहा हूं आपको, क्योंकि मेरी अपनी जबान लुगत होती है कुछ चीजें समझाने के लिए। हम जब किसी से कहते हैं इंसान का बच्चा बन जा, तो क्या मतलब होता है? बॉडी बिल्डर बन जा, डोले शोले बना ले। मैं एक दफा एक जिम गया, मैंने इतने ऊंचे ऊंचे डोले शोले वाले लोग देखे, मैंने कहा यार लासानी के कट्टे लग रहे हैं ये तो मुझे। आपको पता, कोई भाई बॉडी बिल्डर हो तो उसका मजाक उड़ाना मकसद नहीं है, मतलब यार इतना वेट उठा उठा के क्या जरूरत इतने बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर बनाने की। आपको देखा होगा बाद लोगों के पूरे पूरे स्पीड ब्रेकर, K2 माउंट एवरेस्ट की पहाड़ियां बनी हुई हैं। तो बकरीद में तैयार होते हैं ना कराची में, देखा होगा आपने। अब आप ऐसे किसी बिल्डर को कह रहे हो इंसान का बच्चा बन जा, वो कहेगा मैं तेरे से ज्यादा ताकतवर इंसान हूं। तो हम उसे क्या कहेंगे? भाई इंसान के 2 पहलू हैं, मादी लिहाज से तू हमसे ज्यादा सेहतमंद है, हमारा मकसद है कि चोरियां चुकारियां छोड़ दे, गैर अखलाकी हरकतें छोड़ दे। ये मतलब होता है इंसान का बच्चा बनने का। यानी जब हम किसी की रूहानी जिंदगी को फोकस करते हैं तो फिर हम उसको आसान जबान में क्या कहते हैं? इंसान का बच्चा बन। बात समझ में आ रही है? तो गोया मतलब यह हुआ कि इंसान को इंसान का बच्चा बनाने के लिए कुरान का दावा यह है कि मेरे अलावा किसी के पास पैकेज, बोलो इधर तवज्जो, नहीं है। इंसान अगर इंसान का बच्चा बनना चाहता है ना, तो ये कुरान के अलावा नहीं है किसी के पास पैकेज। ये गाइडेंस आपको कहां से मिलेगी? कुरान से मिलेगी। सेहत की गाइडेंस गोरों से मिलेगी, जापानियों से मिलेगी, उनकी तहकीकात, नई नई रिसर्च आती रहती हैं। ये है अंडे में पहले था कोलेस्ट्रॉल नहीं है, कोलेस्ट्रॉल है, अब आ गया कोलेस्ट्रॉल नहीं है। पहले था एक अंडा भी नहीं खाओ, कि 4 अंडे खाओ। कल क्लिप आया हुआ है 4 अंडे खाएगा रोजाना। मैंने कहा भाई डॉक्टर साहब पैसे भी दे दिया करो 4 अंडों की डेली। खैर वो यूट्यूब पे था, मैं कह नहीं सकता था। खैर, तो मेरे भाई जैसे मादी जिंदगी में अगर आप फितरत से बगावत करेंगे तो आपकी बॉडी की ऐसी की तैसी हो जाएगी। इसी तरह मेरे भाई रूहानी जिंदगी में अगर आप फितरत से बगावत करोगे तो आपकी जो दिमाग है ना, उसकी ऐसी की तैसी, ऐसी डिस्टर्बेंस होगी कि आप पागल हो जाओगे, दिमाग खराब हो जाएगा, खुदकुशियों की तरफ जाओगे।
تو یہ جو بڑی بڑی قومیں ہیں نا جو انتہائی ترقی پہ پہنچی ہوئی ہیں اور اس کے باوجود بھی ڈپریشن، اسٹریس اور خودکشیاں، وجہ کیا ہے؟ روحانی زندگی میں فطرت سے بغاوت.